Hello student, welcome to Internet Programming Tutorial Series. Today we discuss very important topic, and that the questions they ask the number of time in your question final exam. So that is the question is nothing as your PHP MySQL, uh, or they ask regarding some applications like username or the registration form you create, and that regarding the code write down on the answer sheet. So that kind of the application they ask, exactly not the same ask, but some that kind of the questions they ask on the university paper. Um, so right now here we create the one application. First of all, from the front end or from the browser, I send the one request for registration, and that request which is to be passed to your web server, and web server to your the database server. Okay. After that, the another application we have to create, that is nothing as a login. Whatever you inserted your data, okay, that is already inserted or not, or already your username password or not, that kind of the another application we have to create. So regarding what we needed on there and how we write down the PHP code on there, so that today we discuss on there. So first of all, we clear about the GUI, how they work, and then practically we do the work. Okay. So first of all, we do the camera off. Okay. The question is what? First of all, I create one page here using HTML or using PHP. Maybe your PHP allows HTML and PHP. So don't be bothered about whatever the front end page you can create using HTML or using PHP. Whatever you want, you can use the extension and create the file on there. Okay. So right now I create the browser one PHP file, that name is the registration page. Okay. Through that registration page, I take the name, username, password, and mobile number. So that request we pass in a web server. Okay. So web server, that name is suppose any web server, or that the data which is to be insert on there, that the name is suppose insert.php. Okay. What insert you want to data? First of all, the registration, whatever the data name, username, password, and phone number, we first insert on the web server here, and through that web server we can insert the data onto the database. Okay. So so what regarding to do it on there? So first of all, through the web server to database, from here to here, the web server to database, they are connected or not. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक, मतलब कि वेब सर्वर और डेटाबेस एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है. ओके. वो पहले हमें चेक करना है. अगर वो कनेक्टेड है, देन वी डू द सम एक्शंस हियर, एक्शंस लाइक योर इंसर्ट. ओके. फिर चेक, अपडेट, delete. Okay, that kind of the actions we have to doing on the after that. So how we make the connection? Using connection.php, one of the page we have to create. Through that connections we can check through the web server to your database. Okay. So I think you got the idea from them. Yes. First of all, we draw what? First of all, we do here one page, that name is a registration. Shortcut I write down. Then second is what? We make the connection page. Why we use the connection page? That is web server to database, they are connected or not. If they connected, then what we do the action on here. Action is right now here what? Insert. So third page is what? Insert on there. Yes. So after insert is complete, then the another page we have to create, that name is the login. Okay. Again login, that we check the connection, fifth connection we check. Okay. And then sixth, the action will be taken on there, that is action is nothing as check.php. So in that way what? We create the pages on there.
Okay, so first of all, I create the application. First, create the database. Okay, after that, we make the connection from web server to your database through the connection.php name, that page. Then I create the one browser front end page. Suppose I take the registration, I want to do the registration, so that front end we design registration, and then we send the request to the web server and then do the action on there. First action is insert, and second action is what, to check username and password. First insert and then check that one. In that way we create the application. So what we do first, I do first create the database. So here we start the database. So service I start first of all. Okay, then we go to the database. I start here and then click on there. So okay, we come to the database, and already on the database are there. Okay, so here we create the new database. Okay, login or registration, whatever. Already we have the databases, different databases. Test database, we click on there. Okay, and then here one table, create table. So here we seen that, you seen that, then option is there, create table. So using that, what we create the table. That table name is register. Okay, here the four, not the four, five. Which one is first is ID, second is your name, then username, password, and then your mobile number. Okay, so we come to go, click, and then first of all we type the ID. Okay, that is the integer. The length is, suppose whatever you want to take, this 20 suppose, and then that we consider as a auto increment unique key. Okay, then we take the name, small letter, then vrchar. Okay, so here 45, then here username, small letter, username, then vrchar. Okay, this one also is 45 suppose, then password, here password is a vrchar, and then 45. Okay, then here's a mobile number, mobile only, that m is small. Okay, also we take the vrchar, then 45. You can take that the mobile number in number also, but I take here what, vrchar. So save this file. Yes, I save this file, and I got the column ID, name, username, password, and mobile. Okay, so that table we have to insert the data. So first of all, what we do, we make the connections between the web server to your database server. Okay, so that regarding one page we have, or otherwise we can do the one page. Okay, here that is the front page, we do registration. Okay, so first we do registration and then we make the connection. Okay, and third page what, insert. Okay, so in that way what we do, first registration, then connection, and then insert. Yes, so we come to the writer, a and writer here. Okay, and in that what, we already the template, and the template we insert the form tag. Okay, so you know the variable form tag. In that form tag, we first we take the name. Okay, here, and that the name, so we take the input type in here, input type, input type here,
we take the text and then that the name of that use a name only. Okay, so you can take the name only. Okay, you name only, not name as it is we have taken. So inside the double inverted comma, here we complete the double inverted comma. Okay, then we take the break on there. We take the break here. Okay, so in that way, how many we have? 4. Here we take the copy. Okay, then we do the paste. Again we do the paste. Again we do the paste. 5 paste. Here what? Name, not the 5, sorry, 4 only. The databases we taken the 5 because ID is on there. So here username. Okay, then here what? Password, and here mobile number. Okay, so all these are we have to take on the text. So here what? We take the full form, username in small letter, then here we take the name is what? Password, and here what? M number, only M number, sorry, M number. So right now we do the button. We create the one button, that input type. Here we can take the submit. Okay, submit their name. Then complete, and then that value which is to be taken here, we take the registration. Register only, chalo. Then we save this file. We take the preview. No, it is not possible. We take the preview. So what we do? We first of all we go to the server here, and server, we click on there. Yes, registration.php. Yes, I got what? The form values on there. Okay, name, username, password, and then all. Once you click on there now, so that page which is what? Pass to the another page. So right now here form name we have to taken, form name equal to double inverted comma form1 f1. Okay, and then method we have to take here the post. What we taken? The method here, what? Post, and the action here, what? Action is what mean by the action? Here we come to here, it means what? That it means what? The action is what? We all the values, username, password, mobile number, then all we are stored into web server, and through that web server they insert all the data to that the databases. But before
we make the connections. Okay, so right now the values we have to come on the web server. So how to come that the web server? Okay, so here we create the one page, that name is insert suppose, and that insert we store all the values on that page, in that page. Okay, so in that insert the page we save all the values on there. How? That regarding one uh, the PHP code we have, and through that we can connect. Okay, so this one, so action is what, where insert dot php. Okay, we save this file. Okay, and we create the another file, that name is what, here insert dot php. Yeah, so insert.php, we save this file. Okay, and that file we start the PHP coding on there. Okay, so PHP, and the end of the script is what, in that way. Okay, so first of all we take the post method, so that's why we take what here, the variable name. Whatever we take the variable name, we can take here that nothing as what, username. Okay, suppose I take the username in small letter, okay, equal to, there here we have the predefined syntax for the post, dollar underscore, here post, sorry, here what, post. Okay, inside the bracket we return the username, single unit comma username. It means what happened here, जो रजिस्ट्रेशन पेज से मैंने यूज़र नेम लिखा था, ओके, वो यूज़र नेम जैसे मैं उस टेक्स्ट बॉक्स में डालूंगा, कुछ भी यूज़र नेम डालूंगा, ABCD whatever XYZ और कुछ भी, ओके, वो सारा इस यूज़र नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने एक्शन insert डॉट php का दिया है, तो insert डॉट php में आ गया और यूज़र नेम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो सबसे पहले मेरा था यहाँ पे यू नेम था, ओके, नॉट द यूज़र नेम, सॉरी, देन सेमीकोलन। तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सबको यहाँ पे, ओके, देन कॉपी और वन बाय वन उसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, पेस्ट, देन पेस्ट, सॉरी, यहाँ पे, और नेक्स्ट इज व्हाट, योर द पेस्ट। Okay, so in that way what we make the changes on there, and then we do the program. Okay, so second is what, username, थर्ड वन था आपका पासवर्ड, और फोर्थ वन था आपका क्या, अरे सॉरी, एम मोबाइल, एम नंबर। ओके, तो यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं, यू नेम, यूज़र नेम एज इट इज़ रहने देते हैं, फिर पासवर्ड को चेंज करते हैं हम यहाँ पे, पासवर्ड, एंड देन लास्ट वन योर एम नंबर एज इट इज़ रखने देते हैं, एम नंबर, सॉरी, नंबर। ओके, इस तरह से मैंने क्या किया, चारों वेरिएबल को स्टोर कर दिया इस वेरिएबल में, जो कि रजिस्ट्रेशन पेज से आए थे। तो अभी क्या करना है, मुझे वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करनी थी, यहाँ पे। ओके, कैसे, यहाँ पे से वैल्यू आ गई, अभी डेटा यहाँ पे वैल्यू आ गई सारी, यूज़र नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, देन अभी यहाँ से यहाँ पे डालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्यूरी फायर करनी पड़ेगी इंसर्ट की। तो उसके लिए इस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्यूरी लिखनी पड़ेगी। एक वेरिएबल लेता हूँ सबसे पहले क्यूरी नाम का, और वहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उसको वो क्यूरी वहाँ पे सेव कर देता हूँ इस वेरिएबल में। तो सबसे पहले क्या होगा, इंसर्ट इनटू। ओके, अभी डेटाबेस टेबल का नाम क्या था मेरा, डेटाबेस जो मैंने टेबल बनाया था स्टार्टिंग में, उसका नाम था रजिस्टर। ओके, और उसके बीच में 4 मेरे पास वेरिएबल सॉरी कॉलम थे। ओके, तो पहला वाला तो नहीं लेने वाला हूँ मैं। उसके बाद मेरे पास था वहाँ पे सबसे पहले नेम, ओके, फिर यूज़र नेम, देन कॉमा पासवर्ड, और फोर्थ वाला कौन सा था, यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा फोर्थ वाला कौन सा था, वहाँ पे डेटाबेस में जाके चेक करना पड़ेगा। एडमिन, ओके, टेस्ट डेटाबेस में जाता हूँ, सॉरी टेस्ट डेटाबेस में गया, और यहाँ पे मैंने रजिस्टर पे गया। ओके, मोबाइल लिखा है खाली, कौन सा लिखा है यहाँ पे, मोबाइल लिखा है। ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूँ अभी, और यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल, दैट्स इट, कंप्लीट। और वैल्यूज़ अभी मुझे डालनी है। तो वैल्यूज़ डालने के लिए मेरे पास ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा है वेरिएबल्स, जो कि वो एक्शन करने के बाद वो इंसर्ट में जाएंगे। तो सबसे पहला कौन सा था मेरा, सबसे पहला मेरा था सिंगल इनवर्टेड कॉमा में देना पड़ेगा मुझे ये। ओके, यू नेम, ओके, फिर मेरे पास रहेगा सेकंड वाला रहेगा यूज़र नेम, ओके, फिर थर्ड वाला मेरे पास है पासवर्ड, सिंगल इनवर्टेड कॉमा में देना पड़ेगा। ओके, और लास्ट में मेरा है एम नंबर, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में एम नंबर। ओके, इस तरह से मैं ये क्यूरी फायर कर दूंगा। तो ये बन गया मेरा क्यूरी। ओके, बट माइस्क्यूएल में सॉरी इस पीएचपी में माइस्क्यूएल में अगर डेटा इंसर्ट करना है तो उसके रिगार्डिंग एक फंक्शन है वहाँ पे। ओके, उस फंक्शन का नाम है यहाँ पे, और लाइब्रेरी है उनसे बोलेंगे माइस्क्यूएल आई, ओके, अंडरस्कोर क्यूरी। ओके, उस क्यूरी के बीच में सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा कि कनेक्शंस बनाए क्या आपने। अभी तक तो मैंने कनेक्शन नहीं बनाए, तो वो वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, कॉमा, और जो आपने क्यूरी फायर की है, ओके, वो क्यूरी वहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी, क्यूरी। ओके, तो यहाँ पे मैंने एट द सेमी कॉलन लगा दिया। यस, अगर मतलब कि इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ इसको, कोई भी टेस्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ओके, अगर इफ कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ किया मैंने और बोला कि टेस्ट अगर आई है, ओके, अगर टेस्ट मतलब क्या, माइस्क्यूएल क्यूरी अगर वहाँ पे जाती है कनेक्शन होने के बाद, अगर इंसर्ट होता है डेटा, तो व्हाट, एक मैसेज आएगा मुझे वहाँ पे कि अरे तेरा डेटाबेस जो है वो इंसर्टेड हो गया। यस, व्हाट, डेटाबेस क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। ये कैसे बोलेगा वो, इको में बोलेगा, इको इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा, यहाँ पे भी
डबल एंड कॉमा और एंड सेमी कॉलन। ओके, अगर नहीं है तो क्या होगा, एल्स में जाएगा। अगर डेटाबेस नहीं इंसर्ट हो रहा है तो एल्स में बोल देगा कि डेटाबेस इंसर्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, नॉट इंसर्ट। ओके, इसको मैंने सेव किया, बट अभी यहाँ तक, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई बोल सकता है, कोई जान सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने जो क्यूरी फायर की थी, ML SQLi अंडरस्कोर क्यूरी। ओके, वहाँ पे यहाँ पे कनेक्शंस का कोई ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है। तो पहले, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोलना था मुझे, कि यहाँ पे कोई कनेक्शन नाम का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बना है। फर्स्ट वाला कनेक्शन देन क्यूरी फायर करना था। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे क्यूरी बनानी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे बहुत सारे बोल रहा है, वो बहुत सारा बन गया है, क्लोज ऑल कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक प्लस नाम से सेव एज करता हूँ, सेव एज, यहाँ पे बोलता हूँ कनेक्शन। ओके, डॉट PHP। उस कनेक्शन डॉट PHP में क्या रहेगा, उस कनेक्शन डॉट PHP में ऐसा रहेगा। ओके, मतलब वेब सर्वर से लेके डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है, खाली कनेक्शन, कोई इंसर्ट विंसर्ट कुछ नहीं करना, सिर्फ कनेक्टेड है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे 4 पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला पैरामीटर होता है कि सर्वर का नाम क्या है। ओके, फिर उसका यूज़र नेम क्या है, डेटाबेस सर्वर का यूज़र नेम का नाम क्या है, फिर उसका पासवर्ड क्या है, और उसका डेटाबेस का नाम क्या है। ये चारों चीज़ें उस डेटाबेस की मुझे मालूम होनी चाहिए, तभी ये कनेक्शन बन सकता है। ओके, तो तो सबसे पहले मुझे ये कीवर्ड डालनी पड़ेंगी यहाँ पे। ओके, उस PHP पेज में। तो सबसे पहले मैं PHP का टैग डाल के उसको स्टार्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे उसको मैं एंड कर देता हूँ, और बोलता हूँ कि भाई तेरा यूज़र नेम क्या है, सर्वर नेम क्या है। ओके, फिर ओके, सिंगल नेट ऑफ अमाउंट देना है मुझे, सेमी कॉलन, फिर पासवर्ड क्या है, सॉरी, यूज़र नेम क्या है। ओके, उसके बाद उसको बोलना है कि तेरा पासवर्ड क्या है, मतलब डेटाबेस का पासवर्ड क्या है। ओके, तो यहाँ पे उसको पासवर्ड भी बोलना पड़ेगा, पासवर्ड भी देना पड़ेगा, तभी मैं कनेक्शन बना सकता हूँ। ओके, उसके बाद एक 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 मुझे ढूंढना पड़ेगा अभी, और उसके बाद डेटाबेस का नाम, DB नेम। ओके, डेटाबेस का नेम, वो भी एक वेरिएबल है। ओके, डेटाबेस नेम इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देना पड़ेगा। ओके, तो ये कब हो सकता है, जब मैं MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट नाम की अगर लाइब्रेरी कॉल करता हूँ, तो उस टाइम पे ये सारे जो भी वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं, वो वेरिएबल्स मुझे लगने वाले हैं। ओके, मतलब क्या, अगर MySQL कनेक्ट में ये चारों वेरिएबल है, सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस, तभी आपका डेटाबेस कनेक्ट हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया। तो मैं 1 बाय 1 कॉल करता हूँ इसको। सर्वर नेम हो गया, फिर डॉलर, यूज़र नेम हो गया, फिर डॉलर, पासवर्ड भी हो गया, फिर डॉलर,
मैं बोलूँगा कि यार डेटाबेस नेम। ओके, तो अभी तक तो मैंने डाले नहीं है। ओके, दैट वी हैव टू स्टोर इन वन वेरिएबल। Why we take the one variable and store in that, we discuss later, but first of all we take the one by one data on there. Okay, तो चलो, सर्वर नेम हमें मालूम है, और सर्वर नेम का जो एड्रेस है वो मुझे लेना है यहाँ पे। तो क्या है सर्वर नेम का एड्रेस? ये वाला। ओके, फिर उसके बाद उसका यूज़र नेम रूट है, और पासवर्ड भी मैंने रूट ही डाला था। और डेटाबेस मेरा क्या था वो तो मुझे चेक करना पड़ेगा। डेटाबेस क्या था मेरा? टेस्ट डीबी था, आई थिंक सो। यस, टेस्ट डीबी। टेस्ट डीबी में मेरा दो टेबल है, तो रजिस्टर और टेक्स्ट। तो रजिस्टर में तो टेस्ट डीबी मेरा क्या है अभी यहाँ पे डेटाबेस नेम है ये वाला, टेस्ट डीबी लोकल होस्ट। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे आता हूँ ब्राउज़र के, सॉरी, एआई राइटर के ऊपर, और बोल देता हूँ कि 0.0.0.0:3306 मेरा एड्रेस है। यूज़र नेम मेरा रूट है। ओके, और पासवर्ड भी मेरा क्या है? रूट है। और डेटाबेस क्या था हमारा? टेस्ट डीबी था। यस, तो इस तरह से मेरा बन गया। अगर ये कनेक्शन होता है सक्सेसफुल, तो ये कनेक्शन वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा मुझे। क्या कि इफ़, अगर ये डॉलर मार्क में देना पड़ेगा मुझे कनेक्शन। ओके, तो इफ़ ये कनेक्शन डॉलर मार्क वाला अगर है तो क्या होगा फिर? तो होगा कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया आपका। $.com में देता हूँ मैं उसको, सेमीकोलन, यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश। ओके, अगर नहीं है तो कनेक्शन ही नहीं बना है, तो मतलब क्या, कनेक्शन आपका डेटाबेस से कनेक्ट ही नहीं हुआ है, मतलब वेब सर्वर से कोई कनेक्शन ही नहीं बना है आपका। ओके, तो ये वाला जो कुछ है वो तुझे बताना पड़ेगा सब कुछ। ओके, कनेक्शन नॉट एस्टैब्लिश, इसको सेव करता हूँ। ओके, यस, उसको सेव कर दिया। अभी सेव करने के बाद ओके, मुझे कहाँ पे आना है? इंसर्ट डॉट पीएचपी में आना है। ओके, तो इंसर्ट डॉट पीएचपी में आने के लिए मुझे फिर से डाउनलोड में जाके पीएचपी में जाके इंसर्ट डॉट पीएचपी में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि सबसे पहले तू इंक्लूड कर ले भाई। इंक्लूड, यू नो, इंक्लूड, इंक्लूड मीन्स यू इंसर्ट द अनदर फाइल। यहाँ पे इंक्लूड कौन सी फाइल? कनेक्शन डॉट पी एच पी। यहाँ पे सिंगल लेटर में बोलना पड़ेगा, कनेक्शन डॉट पी एच पी। ओके, कंप्लीट हो गया, एंड द एंड सेमीकोलन। मतलब कि इंसर्ट डॉट पी एच पी में कनेक्शन डॉट पी एच पी जो मैंने लिखा अभी पेज में यहाँ पे। ओके, तो ये वाला कनेक्शन डॉट पी एच पी, ये जो कुछ लिखा है वो कहाँ पे चला गया? सब कुछ इंक्लूड करने के बाद वो सारा पेज का इंफॉर्मेशन इस इंसर्ट डॉट पीएचपी में चला गया। अभी यहाँ पे माइस्क्यूएल क्यूरी थी, तो सबसे पहला मेरा क्या था? कनेक्शन था यहाँ पे, कि कनेक्शन बन फिर क्यूरी फायर कर। ओके, ये सारा सब कुछ इसमें हो गया। अभी देखते हैं कि ये प्रोग्राम रन होता है या नहीं होता है। ओके, ओके, तो ये चेक करने से पहले हम देखते हैं कि ये जो मैंने क्यूरी फायर की है वो करेक्ट लिखा है कि नहीं, फिर उसके बाद हम देखते हैं। ओके, और इंसर्ट इनटू रजिस्टर, टेबल का नाम है रजिस्टर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, मोबाइल वैल्यूज़, यू नेम, एंड देन ऑल, एंड देन लास्ट में मेरा डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा यहाँ पे। ओके, जो मैंने स्टार्ट में लिया था यहाँ पे। तो मैं इसको सेव करता हूँ,
और यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है, ओके, जो फ्रंट एंड रजिस्टर डॉट पीएचपी मैंने किया है वो रफ में किया है। सो वो आप करेक्ट लेआउट लेके या सीएसएस लेके उसको ऐसे बैकग्राउंड कलर लेके या उसको अच्छी तरह से टेबल में डाल के आप उसको रजिस्टर फॉर्म बना सकते हैं। ओके, तो मैंने एक रफ बनाया, तो एज इट इज़ आपको नहीं बनाना है, आपको एक डिज़ाइन करके बनाना है, क्योंकि मुझे वो फास्ट करना था इसलिए मैंने वो ले लिया। ओके, तो चलो हम देखते हैं उस प्रोग्राम को कि आपका डेटा एंटर होता है या नहीं डेटाबेस में। ओके, तो मैं क्या करूँगा, फिर एएन वेब सर्वर में जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी वेब सर्वर स्टार्ट है। ओके, तो मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। ओके, और सबसे पहले मेरा कौन सा था, रजिस्ट्रेशन डॉट पी में गया, तो यहाँ पे मैं डेटा डाल देता हूँ, नेम डालता हूँ सपोज सरीन। ओके, यूज़र नेम डाल देता हूँ सरीन देवरे। ओके, पासवर्ड डाल देता हूँ देवरे, और मोबाइल नंबर रैंडमली कुछ भी डाल सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ भी डाल दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे आप वैलिडेशन भी लगा सकते हैं कि मोबाइल नंबर 10 अंक का ही स्टार्ट होना है, सॉरी 10 नंबर का ही होना है, फिर स्टार्टिंग 91 से ही होना है। सो दैट काइंड ऑफ द वैलिडेशन यू कैन अप्लाइड यूजिंग JavaScript also, but that is not the part today we discuss. We just discuss only the PHP through we can connect the data and pass the data to the inside the databases. Okay, ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलो हम देखते हैं, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किया। ओके ओके, तो रजिस्टर पे करने के बाद उसने क्या किया, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, मतलब वेब सर्वर से डेटाबेस में, और उसके बाद आपका डेटाबेस इंसर्ट हो गया। चलो हम देखते हैं डेटाबेस इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेब सर्वर में जाके फिर MySQL सर्वर में जाना पड़ेगा और इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो टेस्ट डीबी में मेरा था, कौन सा टेबल था वो, डेटाबेस कहाँ पे गया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और टेस्ट डीबी, और टेबल का नाम था रजिस्टर, यहाँ पे क्लिक किया और देखा, यस मेरे पास रिकॉर्ड आ गए। अभी आपको रिकॉर्ड दिखाना है मुझे कौन से हैं, ये वाला सरीन, फिर सरीन देवरे यूज़र नेम। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे देवरे, और ये जो मोबाइल नंबर हमने डाला था रैंडमली वो दिख रहा है। तो इस तरह से डेटाबेस में डेटा आपका जाएगा। ओके, तो आई होप you understand those things, and you can do the practical also on your project. So next is what, जैसे डेटाबेस इंसर्ट होता है तो रीडायरेक्ट होना चाहिए पेज। अगर रजिस्टर होता है तो एक ही यूज़र एक बार रजिस्टर करता है, बराबर, तो उसके बाद उसका लॉगिन पेज ओपन होता है, तो वहाँ पे जैसे डेटा इंसर्ट होगा तो वो पेज कहाँ पे जाएगा, रीडायरेक्ट लॉगिन पेज पे जाएगा। अगर रजिस्टर से डेटा रजिस्टर कर रहे हैं आप, डेटा डाल रहे हैं डेटाबेस में, अगर वो नहीं चाहता है तो उसी पेज में वो रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, जैसे लॉगिन में गया तो लॉगिन में यूज़र नेम पासवर्ड डालूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने डाला था सरिन देवरे यूज़र नेम और पासवर्ड देवरे, तो वो दोनों मैच होने चाहिए, और नेक्स्ट वाला जो पेज होगा होम पेज वो दिखना चाहिए। So that is the thing we have to discuss in next video. Okay, so thank you for watching those video, and please subscribe my channel and please share my channel. Thank you so much all of you.